लास्ट टाइम हम जेनर डायोड्स की बात कर रहे थे. So zener diodes are designed for consistent usage in reverse breakdown region, and the main application of reverse breakdown region is as a voltage regulator, जो कि आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से आप voltage regulator डिज़ाइन कर सकते हैं using zener diodes. But first we need to model the zener diode in a reverse breakdown region. सो जेनर डायोड के लिए हम ये स्लाइटली डिफरेंट सिंबल यूज़ कर रहे हैं. नॉर्मल डायोड के लिए वो यूज़ दिस सिंबल, एंड टिपिकली voltage is defined as plus at the anode, minus at the cathode. Current is defined as flowing into the anode and out of the cathode. जेनर डायोड के केस में ये स्लाइटली डिफरेंट सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, और हमने एक नई पोलैरिटी के साथ वोल्टेजेस और करंट्स भी यहाँ पर डिफाइन किए हैं. वी जी इज इक्वल टू माइनस वी एंड आई जी इज इक्वल टू माइनस आई. सो यहाँ पर जस्ट ये मोटिवेशन है कि सिंस फॉर द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन द वोल्टेजेस, अगर आप वी और आई की टर्म्स में वोल्टेजेस को लिखें तो दे विल बी नेगेटिव नंबर्स. सो अगर आप एक नया वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर लें इंस्टेड ऑफ दिस वी एंड आई, Vz and Iz, where Vz is equal to minus V and Iz is equal to minus I. So then we will have to deal with just positive numbers. So positive entities के साथ deal करना आसान है. So we are just this is just a matter of convenience. ये जो हमने नए variables define किए हैं Vz and Iz. Vz is equal to minus V. So Vz is defined as plus at the cathode, minus at the anode, and Iz is equal to minus I, or in other words, Iz is the current entering into the cathode of the zener diode and out of the anode of the zener diode. So zener diodes के लिए usually हम चूँकि reverse breakdown region में बात करेंगे, so these are the new convention of voltages and currents that we have defined here. So just main idea ये है कि Iz और Vz positive रहें because positive entities are easier to deal with. So it is just a matter of convenience, just a matter of ease. ये जो दो नए वेरिएबल्स हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं. So let's start by developing the model for reverse breakdown region. Reverse breakdown region में ये हमने reverse breakdown region में थर्ड क्वाड्रेंट को emphasize किया है. अगेन हम वही I वर्सेस V कर्व V को लेके चल रहे हैं. So it is in third quadrant. अगर आप IZ वर्सेस VZ प्लॉट करेंगे तो ये naturally first quadrant में shift हो जाएगा. So from this curve one can notice that it is almost a straight line. ये entirely almost a straight line है, और इस straight line को अगर आप extend करें तो it will cut the horizontal axis at some point, and we are calling that point as minus Vz naught. एक्चुअली जो आपने डिफाइन की है कि यहाँ पर आपके पास रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन को एक्चुअली हमने डिफाइन ये की है कि व्हेन Vz is greater than Vzk and Iz is greater than Izk, we get into reverse breakdown region. But when you extend, if we want to model this as a straight line, and if we extrapolate that line until it cuts this horizontal axis, then the point at which it cut the horizontal axis is minus Vz naught. So for all practical purposes, Vzk will be almost the same as Vz naught. So for all practical purposes, Vzk को हम Vz naught लेकर चलेंगे, where Vz naught is not actually on the IV characteristic. It is an imaginary point that cuts the horizontal axis when you extend this straight line. जब आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वी एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट जो है वो माइनस वी जी नॉट है. सो बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज वी जी के इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वी जी नॉट. So reverse breakdown region is defined when Vz is greater than Vz naught and Iz is greater than Izk. And since this is a straight line, so let's use the straight line equation y minus y1 is equal to m times x minus x1. And x1 y1 यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं जो कि x इंटरसेप्ट पॉइंट है. So यहाँ पर y axis is I, so I minus I1 is equal to
ये आप देख सकते हैं शेयर स्क्रीन, अभी गालिबन डिस्कनेक्ट हुआ है। यस सर। ओके, सो मैं कह रहा था कि चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को फॉर द पर्पस ऑफ मॉडलिंग हमने एक्सटेंड किए until it cuts the horizontal axis at some point, and that point we call it minus vz naught. And minus vz naught and minus vzk are almost the same. So for all paper and pencil analysis हम vzk और vz naught को almost same लेकर चलेंगे. So let's use the one point form of the straight line equation. Y minus y1 is equal to m times x minus x1. Here y-axis जो है it is basically the current axis, I-axis. So we can rewrite this as I minus I1 is equal to slope, which is 1 by RZ. Horizontal axis is the voltage axis, so V minus V1. So ये आपके पास one point equation आ गई. So इस पे ज़रा देख के बताइए, अगर इस पॉइंट को हम V1 I1 लेना चाहें, ये जो x इंटरसेप्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या वैल्यूज लिखें? V1 I1 की क्या वैल्यूज लिखी जाएं? V1 I1 is equal to at this point सर VCK माइनस VZ नॉट। माइनस वीजी नॉट, बिकॉज हम वीजी के को ऑलमोस्ट वीजी नॉट लेकर चल रहे हैं, और ये माइनस इसलिए क्योंकि हम अभी भी आई वर्सेस वी की बात कर रहे हैं, आई जी वर्सेस वी जी नहीं कर रहे, आई वर्सेस वी की बात कर रहे हैं. सो माइनस वी जी नॉट कॉमा करंट क्या है इस पॉइंट के ऊपर? जीरो, राइट, बिकॉज इट इज cutting the horizontal axis, so current is zero. So let's put this into the given equation here. So we have I minus 0 is equal to 1 by RZ V minus Vz naught, और we can rewrite it as Rz को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, I Rz is equal to V plus Vz naught. So I Rz is equal to V plus Vz naught हमारे पास इक्वेशन आ गई. I Rz is equal to V plus Vz naught, V plus Vz naught. अब हम नए वेरिएबल्स जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे कि वी जी इज इक्वल टू माइनस वी एंड आई जी इज इक्वल टू माइनस आई, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. सो वी हैव आई जी आर जी, आई को मैंने माइनस आई जी सब्सटीट्यूट कर दी है, वी को मैंने माइनस वी जी सब्सटीट्यूट कर दी है. यहाँ पर वी हैव दिस इक्वेशन, और वी हैव वी जी माइनस आई जी आर जी इज इक्वल टू वी जी नॉट, और वी जी इज इक्वल टू वी जी नॉट प्लस IZRZ. जी ये इक्वेशन है. सो इट इज सेइंग के सम द वोल्टेज अक्रॉस द zener diode, voltage across the zener diode by this polarity Vz is equal to sum of two voltages. The first one is a fixed DC voltage Vz naught, and the second is the voltage across a resistor Rz. तो ये दोनों का सम है. तो by KVL we are saying that by KVL this voltage Vz across the zener diode is sum of two voltages Vz naught and by Ohm's law the voltage developed across a resistor Rz. So इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाया जा सकता है? बताइए जरा देख के इसे. इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं क्या बना सकता हूँ? एक ये टर्म आनी है, ये टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी टर्म ये आनी है. तो ये दो कोई कंपोनेंट्स हैं जो सीरीज में है. क्या कंपोनेंट्स बनाए जाएं? सर एक रेजिस्टर और एक डीसी सोर्स. एग्जैक्टली. तो एक आपके पास डीसी सोर्स है with the value of Vz naught, and then you have a resistor Rz, and by Ohm's law if the current is flowing in the downward direction and the current is Iz, then by passive sign convention you get the voltage in this polarity. So the consequence of this model is कि आपके पास जो यहाँ पर और ये टोटल वोल्टेज आपके पास आ गई है Vz. So basically आपने इस जेनर डायोड को अगर ये रिवर्स बायस्ड रीजन में इसको आपने मॉडल कर दिया, इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया बाय दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ वोल्टेज सोर्स Vz नॉट एंड अ रेजिस्टर Rz. सो ये हमने एक मॉडल इसके लिए डेवलप कर ली है. अगर जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है
So then the zener diode can be replaced by this model for the purpose of analysis. And this model is only valid when the zener diode is in reverse breakdown region. And that is defined mathematically as Vz must be greater than or equal to Vz naught and Iz must be greater than Izk. So this is what is required. यहाँ पर हमने VZK की जगह VZ नॉट यूज़ की है क्योंकि VZ नॉट हम लेकर चल रहे हैं और VZ नॉट और VZK आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आर ऑलमोस्ट द सेम. सो जब भी आपको जेनर डायोड किसी प्रॉब्लम में नजर आएगा तो यू विल स्टार्ट विद द assumption that the diode is in reverse breakdown region. You replace the zener diode by this model, you perform the analysis, and at the end of the analysis you verify the initial assumption by checking if Vz is greater than Vz naught and Iz is greater than Izk. सो नॉर्मल डायोड के केस में तो आप फॉरवर्ड बायस की assumption से स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसका करंट पॉजिटिव आया है कि नहीं. लेकिन सिंस zener diodes are usually used for reverse breakdown region, so the default option, the first option that comes to mind when you look at the zener diode circuit is that the diode must be reverse breakdown region. And let's replace the zener diode by this series combination of a voltage source and a resistor RZ and perform the analysis, and after the analysis verify that Vz is greater than Vc naught and Iz is greater than Izk. So ये basic idea है zener diode circuits की analysis के लिए. ये बात हमने कर ली है. So this is the model, and this model is only valid for this model. ये मॉडल है जो भी हमने डेवलप की है, and this model is only valid if Iz is greater than Izk and Vz is greater than Vz naught, and the total voltage Vz is Vz naught plus IzRc, where this Vz is defined as, for a zener diode, as plus at the cathode minus at the anode. This is Vz. Current Iz is the current flowing into the cathode out of the anode. ठीक है, ये हमने कन्वेंशंस चेंज की हैं, थोड़ी सी पोलैरिटी यहाँ पर डिफरेंट तरीके से डिफाइन की है, जस्ट सो दैट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू डील विद पॉजिटिव नंबर्स. तो जस्ट हमने इस तरह रखा है कि हमें पॉजिटिव नंबर से डील करना पड़े. सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड लेट्स सी कि ये मेथड आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. सो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. सो जेनर डायोड के बेसिस पे जो आप रेगुलेटर्स बनाते हैं, वी कॉल देम शंट रेगुलेटर्स because zener diodes usually appear in parallel with the load. So zener diodes appear in parallel with the load, so that's why उसको हम shunt regulator भी कहते हैं. So किसी भी रेगुलेटर को अगर आपने क्वांटिफाई करना है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें देखनी. एक को हम लाइन रेगुलेशन कहते हैं. लाइन रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज. रिकॉल करेंगे जिस तरह हम वोल्टेज रेगुलेटर में पहले भी बात कर रहे थे कि रेगुलेटर की दो मेन जॉब्स हैं. It will have to ensure a constant output voltage in spite of the changes in supply voltage, and it need to ensure constant output voltage in spite of the changes in the load current. So पहला जो supply voltage के साथ changes को जो उसने resist करना है या बहुत small change output पे translate करनी है, that is defined by line regulation. So line regulation is basically change in output voltage with respect to the change in supply voltage. So output voltage कितनी change हुई है relative to the change in supply voltage. Del V out divided by del Vs, and we will express it in units of millivolt per volt. Just to emphasize कि दो voltages का comparison कर रहे हैं, हम इसको millivolt per volt में लिख लेते हैं. Load regulation indicates कि output voltage कितनी change हुई है relative to the change in load current. So load regulation is the change in output voltage with respect to the change in load current. Del V out divided by del IL. And it will be expressed in millivolts per milliamp. तो कितने millivolt की change आपको नजर आई है relative to the milliamp change of current. So these are the two terminology or two quantities that can be used to quantify regulators. तो अगर आपने multiple regulators डिज़ाइन किए हैं और उनका हमने अपने कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेहतर है उनमें, तो यू कैन सी कि किसकी लाइन, उसकी लाइन रेगुलेशन कैसी है, लोड रेगुलेशन कैसी है. सो जिसके केस में दोनों नंबर्स कम आ रही हैं वो ऑब्वियसली बेटर रेगुलेटर है. सो लेट्स नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एग्जांपल 4.7. we have a zener diode in the circuit here. It is specified to have Vz is equal to 6.8 volts at Iz is equal to 5 milliamperes.
RZ हमें दे दिया गया है, RZ is 20 ohms, IZK हमें दे दिया गया है, IZK is 0.2 milliamperes. The supply voltage V plus is nominally 10 volt, so nominal value इसकी 10 volt है, but it can vary between by plus minus 1 volt. पार्ट ए में हमें कहा जा रहा है फाइंड वी आउट विद नो लोड एंड विद वी प्लस एट इट्स नॉमिनल वैल्यू. सो पार्ट ए तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आप कह रहे हैं कि यार ये भी चेंज भी नहीं हो रहा और लोड भी कनेक्टेड नहीं है. सो इस केसेस में बताया जाए कि वी आउट क्या आ रही है इस डायोड की. तो सबसे पहले ये बताइए कि इसमें ये कहा जा रहा है कि दिस डायोड इज स्पेसिफाइड टू हैव वी जी इज इक्वल टू 6.8 वोल्ट एट आई जी इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर्स. इस बात का क्या मीनिंग है? क्या वो आपको आंसर बता रहा है कि इस वक्त वी जी जो है 6.8 वोल्ट है, आई जी जो है 5 मिली एम्पियर है? वट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स और इसको हम कैसे यूज़ करें, क्या एडवांटेज है इसका? जी, एनी इनपुट इन दिस? सर इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूज़ करके. हाँ ठीक है वो आइडिया, लेकिन इस केस में तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपने जो वीजी इसमें वीजी नॉट आप कैलकुलेट कर सकेंगे, बट सब लोग देख सकते हैं कि दिस इज नॉट द आंसर एक्चुअली, दिस इज जस्ट सम पॉइंट ऑन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनर डायोड. तो अगर मैं वीजी आईजी की टर्म्स में उसको प्लॉट करूं तो इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन विल अपीयर समथिंग लाइक दिस. अगर मैं इसको वी जी आई जी की टर्म्स में प्लॉट करूं तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में चीज़ थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी, राइट? सो वी आर जस्ट सेइंग कि इफ Vg of 6.8 is established across the diode, then the corresponding current will be 5 milliampere. So it is just some point on the IV characteristic of the Zener diode, and that's it. On the IV characteristic of the Zener diode in the reverse breakdown region. तो अगर हमें RZ ना गिवन होती तो RZ निकाल लेते. अभी इस केस में आपको VG नॉट नहीं है गिवन, तो आप रिकॉल करें मॉडल हमारा क्या कहता है, Vg इज इक्वल टू Vg नॉट प्लस Iz RZ. तो RZ तो गिवन है, Vg नॉट नहीं है गिवन. तो क्या इस कंडीशन की मदद से हम Vg नॉट निकाल सकेंगे? जरा देख के बताइए इसको. जी, इज इट पॉसिबल टू यूज दिस इनिशियल कंडीशन और द गिवन बायस पॉइंट? यस सर. राइट, वी नॉट को डिटरमिन कर सकते हैं. अगर हमें Vg नॉट गिवन होता और RZ ना गिवन होता तो RZ हम निकाल सकते थे. सो इनिशियल पॉइंट का जस्ट ये एडवांटेज है कि वी कैन डिटरमिन मॉडल में अगर कोई पैरामीटर मिसिंग है, आपको प्रॉब्लम में नहीं गिवन, तो यू कैन यूज दिस बायस पॉइंट, यू कैन यूज दिस इनिशियल कंडीशन पॉइंट to determine that missing term in the model. So in this case we can use this to determine Vg naught. So we will put in Vg is equal to 6.8 and Iz is equal to 5 milli and use this relation since Rz हमें पता है Rz is 20 ohms. So use this relation to determine Vg naught. So Vg naught is 6.8 minus 5 milli into 20. सो Vg नॉट यहाँ से आपके पास आ जाता है 6.7 वोल्ट्स. सो ये आपके पास Vg नॉट आ गया. ठीक है जी, तो हमने जो मॉडल है वो हमने कंप्लीट कर लिया. अब मॉडल में सारी चीज़ें अब हमें पता लग गई हैं, RZ भी पता है और Vg नॉट भी पता है. तो अब नेक्स्ट हमारा ये पार्ट ए हम करना चाह रहे हैं, फाइंड वी आउट विद नो लोड एंड विद V प्लस एट इट्स नॉमिनल वैल्यू. ठीक है, Vg नॉट हमने निकाल ली है, इट इज़ 6.7 वोल्ट. सो लेट्स नॉट डिटरमिन जी, ज़रा बताइए क्या किया जाए इसमें. अब हमने पार्ट ए करना है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप हियर? सर वापस से इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे Vg नॉट की और Iz की. हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसको इसके मॉडल से रिप्लेस कर देंगे, क्या ख्याल है? वी विल स्टार्ट विद एन अजम्पशन. एज्यूम, सिंस हमने देखा कि ये जेनर डायोड है, सो एज्यूम रिवर्स ब्रेकडाउन. सो एज्यूम रिवर्स ब्रेकडाउन, replace the Zener diode by its model which is Vg naught Rz. क्योंकि अब ये मॉडल हमें पता है, so we can make this replacement, we can make this substitution here. So यहाँ पर हम इस Zener diode को रिप्लेस कर देते हैं उसके मॉडल से and then we perform the analysis. So let's substitute the model and then we solve the circuit to determine कि overall Vg क्या आ रही है. यहाँ पर Vg को हम V naught से represent कर रहे हैं, V naught and Vg are the same because V naught भी हमने Zener diode के क्रॉस डिफाइन की हुई है and Vg is defined exactly in the same way. So इसको सॉल्व करते हैं. So ये आपके पास सर्किट है.
RL यहाँ पर ऐसे ही शो हुआ है, इसको भूल जाएं, RL इस पार्ट ए के लिए कनेक्टेड नहीं है. सो दिस इज अ सर्किट दैट वी हैव. कैपिटल R आपको गिवन है, आई थिंक इट इज 500 ohms. RZ भी हमें गिवन है, इट इज 20 ohms. VZ नॉट हम निकाल चुके हैं, इट इज 6.7 volts. और ये V आउट हमने निकालनी है. हाँ जी, कैसे प्रोसीड करें? V आउट हमने निकालनी है, विच इज इक्वल टू VZ, और हमने IZ निकालना है. और once we determine them, then we will compare them with VZ naught and IZK to ensure that कि हमारी initial assumption true थी and the zener diode was actually in reverse breakdown region. जी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, कैसे प्रोसीड करें? पैसिव साइन कन्वेंशन लेबल कर लेते हैं. यहाँ पर नोट करें I और IZ आर द सेम बिकॉज एक ही आपके पास ब्रांच है, ये लोड तो भी कनेक्टेड नहीं है. सो I एंड IZ आर एक्चुअली द सेम इन दिस पार्ट ए. जी KVL अप्लाई कर लेते हैं. V प्लस आपको गिवन है 10 वोल्ट है. सो लेट्स अप्लाई KVL. सो बाय KVL वन कैन सी दैट V प्लस इज इक्वल टू, बाकी सारे पोलैरिटीज आप देख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो दे मस्ट ऐड on the right hand side. So this is equal to IR plus VZ naught plus IZ RZ. जी देखिए KVL ठीक लग रहा है. Do you agree with this KVL statement? Yes, sir. Okay, let's now make the substitutions here because I is equal to IZ and V plus 10 volt है. I is equal to IZ, R is 500, VZ naught is 6.7, IZ अभी हमने determine करना है, RZ is 20. So let's now collect the terms. IZ वाली terms को collect कर लेते हैं, constants को दूसरी side पे ले जाते हैं, is equal to IZ 520. So IZ is equal to 10 minus 6.7 divided by 520. So IZ यहाँ से आपके पास आ जाता है 6.35 मिली एम्पेयर्स. ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर देन IZK, क्योंकि IZK अगर आप रिकॉल करें तो IZK आपके पास था 0.2 मिली एम्पेयर्स. सो IZK वाज 0.2 मिली एम्पेयर्स. So this part is okay. IZ जो आपने निकाला है, it is actually greater than IZK. Now let's determine VZ. So VZ आप कैसे निकाल सकते हैं? VZ आप यहाँ पर अगर जस्ट इस मॉडल के क्रॉस KVL लगाएं, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन डिस्कस कर चुके हैं, VZ नॉट प्लस IZ RZ, and since now we have determined IZ, so let's make the substitution here. VZ naught is 6.7, IZ is 6.35 milli, and RZ is 20 ohms. So VZ आपके पास यहाँ से निकल आता है 6.827 volts. 6.827 volts. And since VZ naught was 6.7 volt, so this seems okay as well. So now we can conclude that since VZ is greater than VZ naught and IZ is greater than IZK, our initial assumption regarding the zener diode, that the diode is in reverse breakdown region, is true. So initial assumption is true, and this completes our analysis. VZ in this case is 6.827 volts and IZ is 6.35 milliamperes. तो ये हमने पार्ट यहाँ पर कर लिया. हमने देख लिया कि नॉमिनल जो विदाउट एनी लोड एंड एट नॉमिनल V प्लस V आउट इज इक्वल टू 6.827 volts. तो ये हमने पार्ट ए कर लिया. लेट्स नाउ लुक एट पार्ट बी. जी पार्ट ए ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो? ओके नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट फिर हम पार्ट बी को देख लेते हैं. सो पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है फाइंड द चेंज इन वी आउट रिजल्टिंग फ्रॉम प्लस माइनस 1 वोल्ट चेंज इन वी प्लस. तो हमें जो गिवन सर्किट अभी के केस में जो हमारे पास गिवन सर्किट है, दैट गिवन सर्किट इज 10
plus minus 1 volt. We have R equal to 500 ohms. We have the zener diode here, and this is Vz equal to V0, and this is the current Iz. So इसको अगर आप देखें, this is a combination of some DC voltage and a change. So we can say that कि इसमें कोई DC component भी है और कोई time varying component भी है. So इसको अगर आप more elaborate तरीके से draw करना चाहें तो you can draw something like this. So there is some change of plus minus 1 volt, and there is a DC value of a DC source of 10 volt. Then there is 500 ohms resistor, and then if we are assuming that the diode is in reverse breakdown region, it can be replaced by its model, which is a DC battery Vz0 and a resistor Rz. ठीक है जी, ये सारी बात है यहाँ पर. सो अब हमें कहा जा रहा है कि जस्ट आप बताएंगे जी चेंज क्या है ये वी आउट में रिजल्टिंग फ्रॉम दिस चेंज इन वी प्लस. तो इन अदर वर्ड्स आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट चेंज को स्टडी करें, जस्ट एसी को स्टडी करें. सो लुकिंग एट द मॉडल इज कंप्राइज्ड ऑफ अ डीसी सोर्स वीजी नॉट, और उसकी वैल्यू में कोई एक्सपोनेंशियल नहीं आ रहा, कोई नेचुरल लॉग नहीं आ रहा, इट इज परफेक्टली अ लीनियर वैल्यू, एंड वी हैव आरजी. तो ये देखिए, क्या ये मॉडल लीनियर है या नॉन लीनियर है? लीनियर है, राइट, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीनियर कंपोनेंट यूज हुआ है आरजी, जो और जो वैल्यूज हैं इन कंपोनेंट्स की वो भी आपके पास लीनियर है. सो इट्स अ लीनियर मॉडल. दैट मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज बाय डेफिनेशन एप्लीकेबल. So if you are interested in just studying the change or the AC, you can use the superposition principle and suppress the DC sources, और just AC के लिए आप स्टडी कर सकते हैं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको यही कहता है ना कि अगर आपने जस्ट किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स निकालने हैं तो बाकी सोर्सेज को सप्रेस कर दें. तो इस केस में हम जस्ट AC को रिटेन रखना चाहेंगे बिकॉज वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द चेंज. तो अगर आपने AC को रिटेन करना है तो आपने DC सोर्सेज को सप्रेस करना है. तो कौन कौन से सोर्सेज को आप सप्रेस करेंगे और शॉर्ट से रिप्लेस करेंगे? यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास DC सोर्स है, राइट, इसको आप रिप्लेस कर देंगे बाय शॉर्ट सर्किट. व्हाट एल्स, क्या ऐसे भी रिप्लेस करना चाहिए हमें शॉर्ट से Vz नॉट को? व्हाट अबाउट Vz नॉट? Yes, sir. It is also a DC source, right? So for the purpose of AC analysis, we just also have to replace this. We also have to suppress this DC source as well. So suppressing a voltage source means setting its voltage equal to 0, which means replace them by short circuits. So the resulting model we get is this one. So ये आपके पास as a consequence model आ जाएगा. The resulting स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास इस तरह का आ जाएगा, विच वी कैन एनालाइज एंड डिटरमिन द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज. सो बताइए जरा इसको देख के, यहाँ पर देखें हमने जस्ट इसको सप्रेस कर दिया, इसको शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया, इसको शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया, वी गेट दिस रिजल्टिंग सर्किट. सो वी लाइक टू एनालाइज दिस सर्किट टू डिटरमिन डेल वी आउट विद रिस्पेक्ट टू डेल वी प्लस. जी क्या आ जाएगा बताइए जरा, देखिए जरा बताइए इसमें व्हाट शुड बी द रिजल्ट हियर. जी क्या हम सर आर जी के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो, जी एग्जैक्टली. तो वी सी दैट टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. सर पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्म में. एग्जैक्टली, तो हम वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पर रेडिली अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय वोल्टेज डिवाइडर वी हैव डेल वी आउट इज इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर टाइम्स डेल वी प्लस. सो आर जी आपको पता है 20 है, गिवन था. आर भी आपको पता है, आर जी इज गिवन 20 ohms, आर भी पता है इज गिवन 500 ohms. सो वी गेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 38.5 milli times del V plus. And since the variation in the input signal is plus minus 1 volt, so the variation in the output signal is plus minus 38.5 millivolts. And del V out divided by del V plus is equal to 38.5
मिली वोल्ट पर वोल्ट। ये देखिए दिस इज बेसिकली द लाइन रेगुलेशन, क्योंकि लाइन रेगुलेशन हमने इसी तरह डिफाइन की थी कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज relative to the change in the supply voltage. So this is basically the line regulation. So ये line regulation है जो ये regulator आपको provide कर रहा है for an input change of supply voltage में अगर input change आ रही है ±1 volt की। नेक्स्ट पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में हमें कहा जा रहा है कि आप बेसिकली लोड रेगुलेशन निकालें। सो पार्ट सी इज फाइंड द चेंज इन वी आउट resulting from connecting a load resistance RL that draws a current of IL is equal to 1 milliamperes। तो अगेन वही हमने पहला स्टेप वही कर दी है, assume reverse breakdown region, replace the zener diode by its model in the reverse breakdown region, which is a series combination of the source VZ0 and RZ। so वो पहला स्टेप हमने कर दिया। सो नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि IL, इस वक्त हमें RL की वैल्यू नहीं बताई जा रही, जस्ट IL बताया जा रहा है कि वो 1 मिली एम्पियर है। और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप चेंज की बात करें, जस्ट हम चेंज में इंटरेस्टेड हैं। तो हम चेंज इसमें इंटरेस्टेड हैं, लाइन रेगुलेशन में इंटरेस्टेड हैं कि डेल वी आउट डिवाइडेड बाय डेल IL हमारे पास क्या आएगा। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन अ चेंज। सो लेट्स डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ अ चेंज। सो अगेन हम जस्ट चेंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज के टर्म्स में से हमने सोचना है ताकि हम चेंज निकाल सकें। सो चेंज के टर्म्स में अगर आपने सोचना है तो हम ये कहेंगे कि अगर RL आपने अचानक से यहाँ कनेक्ट कर दिया तो दिस RL इज नाउ ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। सो पहले जो भी करंट IG था उसमें से अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अब नया करंट जो है वो IG माइनस 1 मिली एम्पेयर है। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन करंट। सो चेंज इन करंट कितनी हमने ऑब्जर्व की है? चेंज इन करंट 1 मिली एम्पेयर थी लोड के ऊपर, लेकिन जो डायोड के थ्रू चेंज आई है, जो डायोड के थ्रू चेंज आई है डेल IG दैट मस्ट बी इक्वल टू -1 मिली एम्पेयर। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस साइन इज टेलिंग अस कि जो जेनर डायोड के करंट पहले स्टेब्लिश था अब उसमें से एक करंट माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। सो चेंज इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, करंट इज बीइंग डिक्रीज्ड, ओवरऑल टोटल करंट इज डिक्रीज्ड नाउ। So as a consequence, del Vz, the change in voltage must be equal to, ये देखें change in voltage इसके थ्रू इसके क्रॉस चेंज आएगी ना, क्योंकि Vz नॉट तो आपका फिक्स्ड है। So del Vz is equal to del Iz times Rz। So it is equal to -1 milli times 20 ohms, Rz is 20 ohms, so -20 millivolts की चेंज आई है। So this load regulation is equal to -20 millivolt divided by 1 milliampere। So this is equal to -20 volt per milliampere की आपको चेंज मिली है। तो जब आपने लोड में 1 milliampere का करंट चेंज की है तो जेनर डायोड के थ्रू जो करंट में चेंज आई है वो -1 मिली की आई है। एज अ कॉन्सिक्वेंस टू वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड जो चेंज आई है दैट इज -20 मिली, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द लाइन रेगुलेशन नाउ इज -20 मिलीवोल्ट पर मिली है। रिकॉल करें लाइन रेगुलेशन हमने डिफाइन की थी एज अ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज relative to the change in the load current, that is called the line regulation। जी देखिए इस पार्ट में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट डी। सो पार्ट डी में हमें कहा जा रहा है फाइंड द चेंज इन वी आउट व्हेन RL इज इक्वल टू 2K। ठीक है, अगेन हमने पहले स्टेप फौरन से कर दिए हैं क्योंकि ये स्टेप हम बार बार कर रहे हैं। सो आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि assume that the zener diode is operating in reverse breakdown region, so then you will replace the zener diode by its model and then you perform the analysis। हाँ जी, एनी आइडिया कि यहाँ पर कैसे एनालिसिस की जाए? हम वी आउट निकालना चाह रहे हैं, RL हमें बता दिया गया कि 2K है, R हमें ऑलरेडी गिवन है 500 ohms है, RZ भी ऑलरेडी गिवन है 20 ohms है। जी कैसे स्टार्ट करें काम? सर फर्स्ट IL फाइंड करेंगे। जी ठीक है, IL कैसे फाइंड करें? सर जो Z0 के अक्रॉस V0 मतलब जो जेनर डायोड के अक्रॉस V0 होगा तो उसको रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है 2K ओम उसको यूज़ करके हम IL ठीक है, वो तो
से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने वी आउट निकाला नहीं है, अभी वीजी हमें पता नहीं है, दोनों चीज़ें भी अननोन है। वी आउट इज इक्वल टू वीजी भी नहीं पता अभी, आई जी भी नहीं पता, आई भी नहीं पता, अभी ये सारी चीज़ें अभी हमने निकालनी है। कैसे स्टार्ट करें? हाँ जी, हाउ अबाउट वी अप्लाई, सर केसीएल अप्लाई कर दें? सीएल अप्लाई कर लेते हैं, राइट? दैट मे बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कुछ करंट्स एंटर हो रही हैं इस नोड में, कुछ एग्जिट कर रहे हैं। सो देयर इज वन करंट एंटरिंग दिस नोड एंड टू करंट्स एग्जिटिंग दिस नोड। सो वी हैव बाय केसीएल we have I is equal to Ig plus IL. Then by Ohm's law, using the passive sign convention here, we can write I as V plus हमें गिवन है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें कहा जा रहा है कि चेंज इन वी आउट स्टडी करो जब आर एल टू के है, लेकिन वी प्लस का कहा जा रहा है कि नॉमिनल वैल्यू पे करो। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वी प्लस इज 10 वोल्ट विच इज गिवन। सो 10 माइनस V out divided by R, which is 500, IZ plus V out minus 0 divided by RL, which is 2K. अब RZ के लिए अगर आपने IZ को लिखना है बाय ओम्स लॉ, तो हमें इस नोड के ऊपर वोल्टेज पता होनी चाहिए। लेट मी कॉल इट Vx. So you can see that कि ये Vz नोट इस तरीके से डिफाइंड है, प्लस एट this node and minus at this Vx node. So we have V out minus Vx is equal to Vz naught. So V out must be equal to Vz naught plus Vx, or V out minus Vz naught is equal to Vx. So Iz is equal to Vx minus 0 divided by Rz, and Rz is 20 ohms, and Vx is V out minus Vz naught divided by 20. So now we can collect the terms containing V out and find the final answer. So V out को right hand side पे ले जाते हैं, so 10 divided by 500, Vz naught को left hand side पे ले आते हैं, is equal to V out 1 by 20, 1 by 2k, 1 by 500. So यहाँ से आपको V out मिल गया, Vz naught चूंकि आपके पास है ऑलरेडी, so Vz naught you already have 6.7 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, होल डिवाइडेड बाय 1 by 20, 1 by 2k, 1 by 500. सो V out अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट इन करें तो यहाँ पर आपको V out मिल जाएगा 6.7619 वोल्ट which is equal to Vz. So now the next step is verification. अरे देख के बताइए, what do you expect? Is our initial assumption true? Is the zener diode in reverse breakdown? जी, इस रिजल्ट को देख के आप क्या कमेंट कर सकते हैं? सर रिवर्स में है ये। Condition true. Yes, the condition is true because this is greater than Vz naught. Similarly, आप यहाँ पर अब next step में आप Iz निकालेंगे and you will find out कि Iz is also greater than Iz naught. So Iz भी आपको नजर आएगा कि Iz भी greater है Iz naught से. So ये आपका पार्ट डी हो गया जिसमें हमने बेसिक KCL से इसकी एनालिसिस की और Vz और Iz निकाला। Ig मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट आप रेडीली Ig निकाल सकते हैं। Ig इज इक्वल टू V नॉट माइनस Vz नॉट डिवाइडेड बाय Rz, तो यहाँ से वो आप रेडीली निकाल सकते हैं, एंड यू विल फाइंड आउट कि इट इज ग्रेटर देन Izk.
So that will complete the verification step. Let's take a look at part E. So part E, बल्कि इसमें आपने चेंज इन वी आउट निकालना था ना, तो हमने अभी की करंट वी आउट निकाली है। तो चेंज इन वी आउट के लिए जो करंट वी आउट निकाली है, इसमें से आप पार्ट ए के रिजल्ट को माइनस करेंगे। तो चेंज आप किस रिस्पेक्ट से कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अभी आर एल कनेक्टेड है और पहले आर एल कनेक्टेड नहीं था। तो जब आर एल कनेक्टेड नहीं था तो आपने पार्ट ए में उसकी एनालिसिस की थी, और अभी आपने आर एल के साथ एनालिसिस की है। तो डेल वी आउट निकालने के लिए जो करंट रिजल्ट है, जो करंट पार्ट में आपने रिजल्ट निकाला है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पार्ट ए के रिजल्ट्स को। पार्ट ए में आपने 6.83 वोल्ट निकाला था, उसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको चेंज मिल जाएगी, एंड द चेंज इज -68.095 मिली वोल्ट्स। सो लेट्स नाउ टेक अ लुक एट पार्ट ई। पार्ट ई में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आउट व्हेन आर एल इज 0.5 के। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट डी एंड पार्ट ई आर एक्चुअली एग्जैक्टली सिमिलर, जस्ट वैल्यू ऑफ आर एल इज डिफरेंट। पार्ट डी में आर एल की वैल्यू 2 के थी, पार्ट ई में आर एल की वैल्यू 0.5 के है। So the circuit is exactly the same. We need to achieve the same thing as well. So the analysis procedure will be the same as well. So the first step is assume that the zener diode is in reverse breakdown region. Replace the zener diode by its model. Perform the analysis by using KCL here. So by KCL you can see that by KCL I is equal to IZ plus IL, which can be written as V plus minus V naught divided by R is equal to V out minus Vz naught divided by Rz plus V out by RL. Then collect the terms comprising of V out on one side and rest of the terms on the other side. So V out is equal to V plus divided by R plus Vz naught divided by Rz whole divided by 1 by R plus 1 by Rz plus 1 by RL। ये RL लिखा है मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V प्लस आपको गिवन है, R आपको गिवन है, Vz नॉट आप कैलकुलेट कर चुकी हैं, Rz भी आपको पता है, R, Rz एंड RL सारा कुछ पता है आपको। सो यू कैन डिटरमिन V आउट, और V आउट इस पार्ट में आपके पास आ जाती है, लेट मी सी, 6.5741 वोल्ट्स। जी इसको जरा देख के बताइए, क्या हमारी इनिशियल assumption ट्रू है? इज द zener diode in reverse breakdown region? नो सर, वो 6.8 था उसकी जी कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ग्रेटर देन Vz नॉट। Vz नॉट आप रिकॉल करें तो Vz नॉट वाज 6.7 वोल्ट्स। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने V आउट निकाली है दैट इज लेस देन Vz नॉट। सो आवर इनिशियल assumption इज फॉल्स। तो इनिशियल assumption हमारी गलत हो गई है। द zener diode इज नॉट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। So now we have to make a new assumption based on these results and proceed with the analysis. So what should be the logical new assumption? अभी आपने ये देखा, आपने कहा यार ठीक है V आउट की ये वैल्यू आई है तो रिवर्स ब्रेकडाउन में तो नहीं है। सो दो आपके पास रीजन बचते हैं, एक आपके पास रिवर्स बायस रीजन है और दूसरा आपके पास फॉरवर्ड बायस रीजन है। What should be the next logical assumption based on these results? जी नेक्स्ट हम क्या अज्यूम करें? रिवर्स बायस अज्यूम करें या फॉरवर्ड बायस अज्यूम करें? रिवर्स बाय सर। जी रिवर्स बायस हमें नेक्स्ट अजम्पशन करनी चाहिए। वाई? बिकॉज यू सी दैट कि ये Vz है और Vz इज डिफाइंड एज इन दिस वे, प्लस एट द कैथोड माइनस एट द एनोड। सो ये रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि यस इट इज नॉट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन बट इट इज स्टिल इन रिवर्स बायस रीजन, यानी कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल relative to the anode. So the next logical assumption must be reverse bias region. So अगर आपकी next assumption है assume that the diode is reverse biased, then we will replace the diode by open circuit, right? Reverse bias को मॉडल करने का ये तरीका है ना कि आप उसे open circuit से replace कर देते हैं. So let's replace the diode by an open circuit here. So the equivalent circuit will be, यहाँ पर आपके पास डायोड कनेक्टेड था जिसे हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट दैट वी हैव नाउ। सो आर जो है आपके पास 500 ओम्स है और आर एल भी आपके पास 500 ओम्स है, और ये वी आउट हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं।
ये V प्लस आपके पास 10 वोल्ट है। जी ज़रा देख के बताइए इस सर्किट में व्हाट विल यू एक्सपेक्ट, वी आउट क्या है इस केस में? There is just one path of current flow, right? 5 वोल्ट सर आ जाएगा। Sorry? 5 वोल्ट सर। एग्जैक्टली 5 वोल्ट्स है नहीं, जस्ट एक वोल्टेज डिवाइडर है, दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हैं, तो 500 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 500 टाइम्स 10 वोल्ट, सो इट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। लेट्स नाउ वेरीफाई। तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जेनर डायोड कनेक्टेड है, क्या ये रिवर्स बायस्ड है? ज़रा देख के बताइए। बट यू हैव कंक्लूडेड हियर इज कि ये 5 वोल्ट है, कैथोड इज एट 5 वोल्ट, एनोड इज एट 0 वोल्ट। जी, इज आवर assumption ट्रू? इज द डायोड रिवर्स बायस्ड? जी, लुकिंग एट दिस, सिंस वी हैव डिटरमाइंड कि डायोड का कैथोड जो है वो 5 वोल्ट्स पे है, एनोड जो है 0 वोल्ट पे है, कैन वी कंक्लूड कि डायोड इज रिवर्स बायस्ड? यस सर। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस, कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल रिलेटिव टू द एनोड, और कैथोड इतना हायर पोटेंशियल पे नहीं है कि रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाए, उसने 6.7 को नहीं एक्सीड किया। So this new assumption is true, and now we have output voltage of 5 volt. तो यहाँ पर ज़रा आप गौर करें, look at the bigger picture here, कि यहाँ पर हुआ क्या है। पहले पार्ट्स के साथ इस रिजल्ट को आप कंपेयर करें तो दिस रिजल्ट इज ड्रास्टिकली डिफरेंट। पिछले पार्ट्स में the voltage was in vicinity of, V out was always in vicinity of 6.8 volts, 6.8 के आसपास रहती थी। इस पार्ट में वो 6.8 से उठ के 5 वोल्ट पे चली गई है। Why? Because the zener diode is no longer operating in reverse breakdown region. It has got out of the reverse breakdown region and into the reverse bias region, effectively playing no role in the in maintaining the output voltage. तो वो चूंकि रिवर्स ब्रेकडाउन से निकल गए और रिवर्स बायस में चला गए, तो अब आउटपुट वोल्टेज जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो गई है। rather than having close to 6.8 वोल्ट, अब वो 5 वोल्ट आ गई है। So what we can conclude from here is कि अगर आप जेनर डायोड को एज अ रेगुलेटर यूज करना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लोड की रेंज जो है उस तमाम रेंज के लिए diode stays in reverse breakdown region, because once the zener diode gets out of reverse breakdown region, it will no longer provide us with regulation. So the zener diode has to stay in reverse breakdown region if you need it to perform the job of a voltage regulator. अदरवाइज वो वोल्टेज रेगुलेटर नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज जस्ट नाउ अ वोल्टेज डिवाइडर, जस्ट एक वोल्टेज डिवाइडर रह गया है, और आउटपुट वोल्टेज जेनर डायोड इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन डिटरमिनिंग द आउटपुट वोल्टेज। So as long as zener diode stays in reverse breakdown region, it will ensure that the output voltage stays in vicinity of some particular number. So it will provide us with voltage regulation in other words. और अगर वो रिवर्स ब्रेकडाउन से निकल जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा, then we have a problem, then the zener diode is no longer playing a role in the circuit, and as a consequence आपके आउटपुट वोल्टेज जो है वो मेंटेन नहीं है। सो इस पार्ट से हमने ये देखा है कि पिछले पार्ट में जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में था, पार्ट ई में वो रिवर्स ब्रेकडाउन में नहीं है। पिछले पार्ट में आरएल की वैल्यू 2K थी, पार्ट ई में आरएल की वैल्यू 0.5K है। सो 2K और 0.5K के बीच में कोई वैल्यू आती है जिसके बाद डायोड गेट्स इनटू रिवर्स बायस रीजन, लेफ्ट रिवर्स ब्रेकडाउन इट गेट्स इनटू रिवर्स बायस रीजन। सो लेट्स डिटरमिन कि वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, क्या लिमिट है जिसके बाद diode will get out of reverse breakdown and get into reverse bias region and will no longer perform voltage regulation. So ये पार्ट F में हम देखते हैं कि वो मिनिमम क्या है, क्या ऐसी वैल्यू है जिस पे ये होगा, what is the minimum value of RL for which the diode still operates in the breakdown region. जी, any idea इसमें किस तरह स्टार्ट करें? हम कह रहे हैं कि हमने वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिस पे जेनर डायोड स्टिल ऑपरेट करेगा ब्रेकडाउन रीजन में, ताकि हमें पता लग जाए कि इससे कम हम आरएल नहीं रख सकते अगर हमने इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना है। जी, एनी आइडिया कैसे हम स्टार्ट लें, ये मिनिमम, ये लिमिट कैसे निकाली जाए? सर हम लोग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स कर देंगे जो पहले पार्ट में हम लोगों ने VZ नॉट ली थी। एग्जैक्टली, तो आप वो क्राइटेरिया वो रखेंगे जो एक्चुअली उसको डिफाइन करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, हाउ इज इट डिफाइंड एक्चुअली। सो VZ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VZ नॉट is the requirement
to stay in reverse breakdown region and Iz is greater than or equal to Izk. तो अब हमने चूंकि उसकी लिमिट निकालनी है, हमने निकालना है कि यार क्या लिमिट है जिसके बाद वो रिवर्स ब्रेकडाउन से निकल जाएगा और रिवर्स बायस में चला जाएगा. सो इस इनइक्वालिटी के बजाय हम इक्वालिटी यूज कर लेते हैं कि Vg इज इक्वल टू 6.7 वोल्ट एंड Iz इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पेयर्स. तो Iz को Izk के इक्वल रख लिया, Vg को Vg नॉट के इक्वल रख लिया. तो दिस विल गिव अस द लिमिट कि इस लिमिट के बाद द डायोड विल गेट आउट ऑफ द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन. So let's now apply the basic laws here. By KCL you can see that we have I is equal to Iz plus IL. So हम कह रहे हैं V plus minus V out divided by R is equal to Iz को Izk हम पुट कर देंगे plus IL is V out divided by RL. So Iz को हमने Izk यहाँ पुट कर दी है, लेकिन V out को हमने Vz नॉट अभी नहीं पुट किया. V out is equal to Vz here because V out is defined as the voltage across the zener diode. So ये भी हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. V plus minus 6.7 divided by 500 is equal to 0.2 milli plus 6.7 divided by RL. ठीक है, तो यहाँ पर एक अननोन रह गया ना आपके पास RL एक अननोन रह गया और फिर आप इस इक्वेशन की मदद से RL डिजाइड RL की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन है, सिंस हम वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर कंप्यूट कर रहे हैं, देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट कि V प्लस की रेंज है, V प्लस इज वेरिंग बिटवीन 9 वोल्ट एंड 11 वोल्ट. V प्लस की किस वैल्यू पे ये कंप्यूटेशन की जाए, दैट इज द मेन क्वेश्चन है. बाकी तो इसमें अगर आप V प्लस की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यू आर जस्ट लेफ्ट विद वन वेरिएबल RL. तो RL को निकाला जा सकता है, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर, वेदर V प्लस शुड बी 9 वोल्ट और 11 वोल्ट. एनी आइडिया कैसे डिटरमिन किया जा सकता है कि V प्लस को 9 वोल्ट रखना बेहतर है या V प्लस को 11 वोल्ट रखना चाहिए फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो. सर हम लोग लोएस्ट रखेंगे ताकि हमें लोएस्ट वैल्यू मिल जाए, क्योंकि उससे ग्रेटर तो एक्चुअली हम इसको 9 वोल्ट ही करके करेंगे, लेकिन वो इस तरह आपको नहीं पता लगेगा. उसके लिए आपको दोनों पे कंप्यूटेशन करके RL दोनों के लिए निकालना पड़ेगा. सो एंड यू विल कंक्लूड कि 9 वोल्ट इज द सोल्यूशन. इसमें V प्लस को 9 वोल्ट रखना चाहिए. वाई? बिकॉज आप क्या करेंगे, इसमें आप रखेंगे कि V प्लस को 9 वोल्ट रखेंगे, उसके लिए RL निकालेंगे, फिर आप V प्लस को 11 वोल्ट रखेंगे, फिर उसके लिए RL निकालेंगे. ये जो RL की वैल्यू है इसको फिर आप एनालाइज करेंगे फॉर V प्लस इक्वल टू 11 वोल्ट एंड यू विल फाइंड आउट कि इस केस में V आउट जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, यानी V आउट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.7 वोल्ट. सो दिस कंडीशन इज बीइंग मेट हियर. लेकिन जब आप ये वैल्यू निकालेंगे V प्लस को 11 वोल्ट रख के, जो भी RL की वैल्यू आपने निकाली है, उस सर्किट को जब आप दोबारा एनालाइज करेंगे फॉर V प्लस इक्वल टू 9 वोल्ट, तो यू विल फाइंड आउट दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, which means this is the solution. This represents the worst case scenario, because this solution will work on V plus equal to 9 volt and V plus equal to 11 volt. In other words, it will work for the entire range of the supply voltage. However, this solution जो कि आपने V plus equal to 11 volt के लिए compute की है, this will only work for 11 volt and will not work for V plus equal to 9 volt. V plus equal to 9 volt के लिए जब आप इस solution की analysis करेंगे तो it will get out of the reverse breakdown region and will no longer provide us with voltage regulation. So the solution should be determined for V plus equal to 9 volt. लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको एनालिसिस करके आपने ये कंक्लूड करना है. तो ये आपने एज अ होमवर्क आपने खुद वेरीफाई करना है कि इस तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, तो मैं अभी 9 वोल्ट के लिए इसको कर रहा हूँ, लेकिन आपने 11 वोल्ट पे ये वेरीफाई करना है कि 11 वोल्ट पे अगर आपने RL को डिजाइन की है तो उसके बाद V प्लस इक्वल टू 9 वोल्ट के लिए इट विल नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ zener diode being in reverse breakdown region. zener diode will no longer stay in reverse breakdown region. ठीक है, ये आपने करके देखना है. फिर अगर कोई मसला है तो नेक्स्ट, if I substitute V plus equal to 9 volt in this relation, तो
RL की वैल्यू आपके पास इस सब्सटीट्यूशन के बाद यू विल गेट RL इक्वल टू 1.52K, और इसको अगर आप V प्लस इक्वल टू 11 के लिए दोबारा से एनालिसिस कर लें, V प्लस इक्वल टू 11 या सब्सटीट्यूट करके दोबारा भी ये पूरी एनालिसिस आप कर लें जिस तरह हमने पार्ट E में या पार्ट D में किया था, तो यू विल कंक्लूड दैट कि जो VZ आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VZ नॉट, एंड दिस विल सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट कि आप वर्स्ट के सिनेरियो निकाल लें। सो RL की वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज द zener diode will get into reverse breakdown, get out of the reverse breakdown region and will no longer provide us with the voltage regulation। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम रेक्टिफायर्स की तरफ जाते हैं, रेक्टिफायर्स को रिविजिट करते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक।